Hello everyone, hope you all are doing well. So today we are going to do the next video of our geography series. जो हमारी ज्योग्राफी सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट वीडियो को आज हम लोग करने वाले हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं that we are continuing the Indian rivers right now. तो इंडियन रिवर्स में we have already completed the Himalayan rivers. We have already completed the Himalayan rivers. So today we are going to do the peninsular rivers. पेनिनसुलर रिवर्स। तो पेनिनसुलर रिवर्स को हम लोग एक्चुअली दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट वन इज द ईस्ट इंडियन रिवर्स एंड द सेकंड पार्ट विल बी द साउथ इंडियन रिवर्स। साउथ इंडियन रिवर्स और फिर साउथ इंडियन रिवर्स को दो पार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट रिवर्स है डिस्कस कर देंगे बाय डिवाइडिंग इन ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग। सो आज हम लोग ये जो पेनिनसुलर रिवर की पार्ट है उसको कंप्लीट कर देंगे। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द हिमालयन रिवर्स एंड दिस ज्योग्राफी सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये जो ज्योग्राफी सीरीज हम लोग कर रहे हैं आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो कीप मेकिंग नोट्स, जितने भी फैक्ट्स हैं सबको रिवाइज करते रहिए। इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। सो लेट्स स्टार्ट विद ईस्ट इंडियन रिवर्स। ईस्ट इंडियन रिवर्स। So the first East Indian river which we are going to discuss today is Damodar। जो पहला ईस्ट इंडियन रिवर जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज दामोदर। दामोदर। तो देखिए दामोदर के ट्रिब्यूटरीज को ऐसे मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ डायग्राम से। जैसे ये हमारा दामोदर है। दामोदर, here you will see Barakar, it is a tributary of Damodar। This is Barakar joining Damodar। Barakar, this is the Bokaro river। Bokaro river, and this is the Konar river। This Konar river joins Bokaro river, and both the rivers then join the Damodar। So these are the tributaries of Damodar। So important points of Damodar must write that it rises in Chota Nagpur plateau। It rises in Chota Nagpur plateau। So Damodar rises in Chota Nagpur plateau। Its important tributaries are Barakar, Bokaro, and Konar। So important tributaries of Damodar are Barakar, Bokaro, and Konar। So this was about Damodar river। We have to don't go in that much detail because not much questions are asked, but we have to know the tributary and where the river rises। Now the second important river that we need to discuss is of in East Indian rivers is Mahanadi। महानदी रिवर। तो अगर आप महानदी रिवर को देखो तो ये हो गई हमारी महानदी रिवर। दिस इज आवर महानदी रिवर and now let's see its tributaries। This one is Sevnath river। First Sevnath joins here, then here Ong joins here, Ong rivers। Here Jong rivers joins here, Jong river, and here Tail rivers join, Tail river। Here you will notice Mand river joining, this is Mand river, this is Hasdev river, Dev river, and this is Jev river। So these are the some of the important tributaries of Mahanadi। Mahanadi rises in Raipur, but it dominantly flows in Odisha। ये ध्यान रखना, rises in Raipur, Chhattisgarh, but it dominantly flows in Odisha। Dominantly flows in Odisha। So this is about Mahanadi river। So I hope you understand this। अब हम लोग बढ़ते हैं रिवर्स ऑफ ओडिशा की तरफ बिकॉज इन ईस्ट इंडिया ए लॉट नंबर ऑफ रिवर्स आर इन ओडिशा। तो सबको एक मैप के थ्रू हम समझ लेते हैं कि
कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर्स हमारी उड़ीसा में है, रिवर्स ऑफ उड़ीसा। तो दिस इज ए रफ डायग्राम ऑफ उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा वालों बुरा नहीं मानना, दिस इज जस्ट a rough diagram. So first of all, in the northern part, you will see a river that is Buddha Bangla. Buddha Bangla river. Next we have Vetarani river. Here you will see Vetarani river. Then here you will be seeing Brahmani river. Brahmani river. Then we have Mahanadi. This is the Mahanadi river which we have discussed just now. फिर महानदी रिवर्स के आप देखोगे यहाँ से रिवर्स निकलती है, दिस इज रुस्य कुलिया रिवर, रूसी कुलिया रिवर, कुलिया रिवर। उसके नीचे ये वंशधारा रिवर, वंशधारा रिवर। देन वंशधारा रिवर से यहाँ एक रिवर निकलते देखोगे आपको, इसको हम लोग बोलते हैं सबरी रिवर। एंड देन हियर यू विल सी इंद्रावती रिवर, इंद्रावती रिवर। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ ओडिशा। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट महानदी, एक्सेप्ट महानदी, all other rivers rises in Odisha, all rises in Odisha। अगर हम लोग यहाँ से महानदी को ये हटा दें तो जितने भी बाकी रिवर्स, चाहे बुद्ध बंगला हो, वैतरणी हो, ब्राह्मणी हो, रुसे कुलिया हो, वंशधारा हो, सावारी हो, सबरी हो, इंद्रावती हो, सब ओडिशा में ही राइज करती हैं। So this is the important point which you should know. So this was about important East Indian rivers. Now let's move to South Indian rivers. साउथ इंडियन रिवर्स। अब साउथ इंडियन रिवर्स में सबसे पहले हम लोग करने वाले थे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, मतलब जो साउथ इंडिया में तो पर ईस्ट की तरफ जा रहे हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। सो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स में सबसे पहला जो नाम है दैट इज गोदावरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट साउथ इंडियन रिवर गोदावरी। तो गोदावरी rises in Tribakeswar of North Sahadrays, Tribakeswar of Sahadrays। इसके जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं दैट दोज आर वेन गंगा, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। नंबर 1 इज वेन गंगा, नंबर 2 इज पेन गंगा, नंबर 3 is Wardha, number 4 is Pranita, number 5 is Majra और मजीरा, number 6 is Indravati। So these are the main tributaries of Godavari, so you should know it, ठीक है। और जनरली जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछती तो ट्रिब्यूटरी से ज्यादा जनरली पूछती है, तो इसीलिए कीप दिस ट्रिब्यूटरीज इन माइंड। प्रीवियसली उन्होंने ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट आफ्टर गोदावरी द सेकंड इंपॉर्टेंट रिवर इज कृष्णा रिवर, सेकंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ साउदर्न इंडिया, कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर राइजेस इन महाबलेश्वर, it rises in Mahabaleshwar. Its important tributaries are Koyna, Bhima, Malaprabha, Gataprabha, Musi, and the most important Tungabhadra। एंड कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच ही जो दोआब है, दोआब
Doab that is placed between two rivers between Krishna and Tungabhadra is known as Raichur Doab. इसको ध्यान में रखना है इससे although is very historically important. ठीक है, रायचूर देव अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो यू ऑल नो दैट इसी एरियाज में आप जो विजयनगर एम्पायर देखते हो वो काफी फ्लोरिश हुआ और रायचूर द्वार के लिए काफी साउथ इंडियन जो साउथ इंडियन किंगडम से वो फाइट करती रहती थी. So these are the important tributaries of Krishna. Now let's move to the important third east flowing river of South India, that is Kaveri. ऑल्दो देयर आर वेरियस रिवर्स, लेकिन जो इंपॉर्टेंट तीन चार है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे जिससे कि हायर चांसेस क्वेश्चन आने के. बाकी तो रिवर्स इतने कि आप डिस्कस करते करते थक जाओगे बट दे विल नॉट इंट. सो इट राइजेस इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ इट राइजेस इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ ताल कावेरी पीक. ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ ताल कावेरी पीक. इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज 2000 हेरांग, हेमावती, लोका पावानी, LO लोका पावानी, काबिनी, लक्ष्मण तीर्थ, सिमसा, करकावती. So these are the important tributaries of Kaveri. Now let's move to the west flowing rivers of southern India. हमने ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स देख लिया, वेस्ट फ्लोइंग को देखते हैं. तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में सबसे पहले हम लोग डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं. ठीक है, थोड़ी आसानी होगी. सो दिस इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ये गुजरात वाली रीजन है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा साबरमती रिवर विच फॉलोज टू वेस्ट. जनरली चार वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हम लोग डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट वन साबरमती. देन हियर यू विल सी मही रिवर. यहाँ पे आप देखोगे नर्मदा रिवर. एंड हियर यू विल सी तापी रिवर्स. तापी रिवर. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स. तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं नर्मदा रिवर को. So you all know that Narmada rises in Amarkantak. और अमरकंटक से दो और इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलते हैं, दैट इज सोन एंड जोहिला. तो नर्मदा, सोन और जोहिला तीनों कहाँ से निकलते हैं? इसी अमरकंटक के एरिया से. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं. ये नर्मदा का पार्ट नहीं है, तो लेफ्ट रब इट. सो इट राइजेस इन अमरकंटक. इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं. दोज आर हेरांग, तावा, कोलार. हेरांग, तवा, कोलार and Prasang. So these are the important tributaries of Narmada. Now let's see the second important river of major west flowing river of South India, that is Tapi river. Tapi. So Tapi rises in Betul MP. Betul, that is in Madhya Pradesh. यहाँ Tapi rise होती है. Its important tributaries are Girna, Baki, अरुणावती, गोमाई. अरुणावती, गोमाई. So these are the important tributaries of Tapi. Next we will move to Sabarmati. So Sabarmati rises in Aravallis. Rises in Aravallis. और इसके important tributaries हैं. The important tributaries are Sabarmati are Vatrak, Hathmathi, and Ranav. So these are the important tributaries of Sabarmati. Now the next west flowing river of South India is Mahi river.
तो मही रिवर का जो ओरिजिनेट है दैट इज इट राइजेस फ्रॉम द विंध्यास and its important tributaries are Som, Anas, and Panam. So these were the some of the important peninsular rivers. Although there are huge number of peninsular rivers, पर ज़्यादा डिटेल में मैंने जाना नहीं क्योंकि वो काफ़ी बल्कि हो जाता है आपके लिए. तो जनरली ट्रिब्यूटरीज और जहाँ कहाँ से राइज होती है वो ध्यान रख लेना. और जैसे कि मैं रिवर्स वाले सेक्शन में आपको जनरली बताता फिर रहा हूँ कि इसको इंटीग्रेट कर लो आप इन्वायरमेंट से. इट विल वेरी इंपॉर्टेंट. इंटीग्रेट इट विद टू इन्वायरमेंट. तो जितने भी इंपॉर्टेंट आपके नेशनल पार्क वगैरह हैं उसको जो भी रिवर्स के आसपास है उसको आप लोग मेंशन कर लो. इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल. ठीक है, तो इनको एनवायरनमेंट से इंटीग्रेट कर लोगे तो इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू. सो दिस वाज ऑल अबाउट द rivers in India. I hope you understand all the things. That is all for today. Please do like, please do share, and please do subscribe. It takes a lot of hard work to make such videos for you on regular basis. Regular basis पे सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगता है. और अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है हमें कि हम और भी ऐसे वीडियोज रेगुलरली आप सबके लिए बना पाएँ. So that is all for today. Have a nice day. Thank you.